चलो, so we are going to revision now. Yes, sir. Revise दिखा रहा है बोर्ड आ रहा है revision of chapter 5. So I am just taking some important topic which is what can come in exam मतलब test में. First is there threat, virus, antivirus, ठीक, hacking. Next, cracking. What is the next one? Is there? Okay, now this is nothing. Okay. So first of all, I am just going to tell you what is threat. Threat means क्या होता है? वो तो थ्रेड होता है, it is a threat here, ठीक है? तो threat means होता है problem. Threat means what? It is problem, okay? So if we are using computer and we are getting any problem regarding hardware, regarding software, so we can say that it is threat problem. Is there in computer, okay? So threat is two types. One is software and another one is hardware problem. Threats we can say is a problem where we can categorize it into two parts: software and hardware. Software, like your computer started, but when you are opening any file is not going to open. When are you going to click? मतलब जब कोई प्रॉब्लम हमें सॉफ्टवेयर में क्रिएट होती है तो हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ठीक है? उसमें कीबोर्ड का या ऐसी कोई चीज जो हार्डवेयर होती है वो प्रॉब्लम नहीं होती है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है. कभी कभी आप ओपन करते हो, हाँ ये भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है कि सपोज दैट यू आर ओपनिंग द कंप्यूटर, बस किसी वजह से कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा है, बूट सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो देयर यू कैन से दिस इज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम. नाउ इन केस ऑफ हार्डवेयर प्रॉब्लम वी कैन से कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, माउस इज नॉट वर्किंग, monitor is not working. So the things which are just you are looking, this is called hardware, you can touch it, hardware, and that cases they are not working properly. So in that case we are called this is hardware. So लो उसको अच्छे से, नहीं तो फिर कल maybe questions can come, ठीक है? तो these are called hardware problems. Now we come to virus. What is virus? Virus is a program. It is hardware or software? Software. Because we can't touch virus. ठीक है? तो it is software problem. We can say it is software threats. It is only use, मतलब कह सकते हैं अगर somebody is going to create virus तो use होता ही है, because somebody is sending virus to your computer and he is stealing some information from your computer to in his computer. So we can say the things, the software program which are used to damage the computer. मतलब damage the computer का मतलब ये नहीं है कि एकदम तोड़ दें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि they are also stealing some information from your computer, ठीक है? कुछ important डाटा को चुराना, this is also called virus, ठीक है? So that they make problematic condition to your computer, this is called virus. First in case of anti, like you are just looking here anti means against काम करना. किसी भी चीज के आगे अगर एंटी होती है ना, जिसका एंटी पार्टी के लोग हैं, एंटी पार्टी का मतलब किसी पार्टी को अपोज करने वाले, उसको उल्टा बताने वाले. तो वायरस इज जस्ट लाइक द थिंग्स विच डैमेज योर कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड वायरस. एंड इन केस ऑफ एंटीवायरस द थिंग्स व्हिच इज यूज्ड, थिंग्स मींस मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की. द प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर व्हिच कैन डिटेक्ट वायरस फ्रॉम योर कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड एंटीवायरस. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वायरस हैं. जैसे आपके पास क्या हो गया, K7 हो गया, ठीक है? क्विक हील हो गया, क्या हो गया, गार्डियन हो गया, अवास्ट. There are many toolkits of viruses, antiviruses. You can install in your computer and you can remove your virus from the computer. Hacking is legal work. Again I am going to tell you. I think somebody of you knows that hacking is just illegal work होता है, कि हैक करना इलीगल होता है. लेकिन जैसे सपोज दैट कि एक क्रिमिनल होता है, किसी को कांटेक्ट कर रहा है, कोई मर्डर करके भाग गया, ठीक है? उसका किसी ने किसी को कांटेक्ट किया, तो पुलिस या किसी गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि उसकी कॉल डिटेल को निकाला जाए, ठीक है?
उसकी कहाँ है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जाए, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड हैकिंग। तो हैकिंग यू कैन से इट इज क्या होता है, हाँ लीगल होता है, बट इन केस ऑफ पीपल आर यूजिंग हैकिंग एज इलीगल, लेकिन लोग उसको इलीगल यूज करते हैं। जो चीज़ हमें नहीं करना होता, किसी का ट्रैक करना और डिटेल निकालना, या किसी का मतलब किसी वजह से पिन कार्ड्स या बहुत सारी चीज़ें जान लेना, सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ देना, तो दिस इज जस्ट कॉल्ड इलीगल, और वो चीज़ें लोग करते भी हैं, ठीक है। एंड क्रैकिंग इट इज टोटली इलीगल, क्रैकिंग तो इलीगल होता ही है। अब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड क्रैकिंग एंड हैकिंग इज देयर। इन हैकिंग इट इज लीगल, क्रैकिंग इलीगल। और हैकिंग में क्या होता है, वी कैन ओनली स्टील द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर बाय सेंडिंग द वायरस। हैकिंग भी कैसे होता है, वायरस के थ्रू, या कोई और भी ऐसा होता है, आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके कॉन्टेक्ट फ़ोन पे फ़ोन आता है कि आप इतना पैसा जीत चुके हो, ऐसा ना उल्टा इधर फ़ोन आता है कि आपको अपना अभी एक मैसेज से आपका OTP जाएगा, प्लीज़ OTP बता देना मुझे, ठीक है। आपने OTP बताया, आपका पैसा अकाउंट से गया, तो डोंट टेल OTP लाइक दैट, ठीक है। किसी को या क्योंकि आप जब किसी बैंक को कॉल करते हो तो कभी नहीं कहता कि आप किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को अपना OTP या कोई प्राइवेसी उसको बताओ। तो अगर कोई पूछ रहा है तो समझो कि फ्रॉड है, तो ये जस्ट कॉल्ड हैकिंग में आता है। और क्रैकिंग में कंप्यूटर को डैमेज कर देना होता है, आपने उसने चुरा लिया और बाय डिफॉल्ट द पर्सन इज गोइंग टू डैमेज द कंप्यूटर, so in that cases it is called cracking. So you find out please find out these things. I think anybody is confusion इसमें, suppose that questions can come on this how many types of threats, ठीक है। वायरस, I think you know better what is the full form of virus, silent. What will be? Peter. There will be source under. Okay. Why it is called virus? आपको पता है ना, वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिलीट कर देना। विटल का मतलब होता है जैविक, बहुत जो किसी पार्ट का बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसी को डैमेज कर देना, तो दैट इज बाय अकॉर्डिंग टू दैट इट इज कॉल्ड वायरस। विटल इंफॉर्मेशन को रिसोर्स को ये डिलीट कर देता है, सीज कर देता है, का मतलब काम नहीं करता इन द प्रेजेंस ऑफ वायरस। So I'm just asking a questions from you all, because you please close your books everybody. I will give you answers also, MCQs question, so you will tell the answer. बंद करो उसको, आप ऐसा नहीं तुरंत देख लो। रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है, मे भी कभी बंद हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम, व्हिच वन इज कॉल्ड एंटीवायरस प्रोग्राम। ऑप्शंस आर हियर, नॉर्टन, क्विक हील, केसेबल, ऑल ऑफ दिस। I have told many times, whenever you see all of these, without any questions you give. I have given same answer to sir in that you are very minded, sir. What I did not understand? Yes, sir. Sir, in the GK quiz competition, sir, you have given sir 3 options and one was all of these, sir. I said all of these and you said it is wrong, sir. Many. देखो, I'm not in this 100% correct. Maybe 90%. वो आपका वो हो सकता है कि आपका जो सवाल है वो 10% में सही रहा होगा, 90% गलत रहा होगा, 10% में सही रहा होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी है ऑल ऑफ दिस मैंने नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 100% सारे ऑल ऑफ दिस सही होते हैं। मैं 90% की बात कर रहा हूँ कि 90% लगभग सही होते हैं, वो मैं बात कर रहा हूँ। और आपको ये भी एक और भी बताया था क्या, कि जब आपको कोई MCQ ट्रू फॉल्स बहुत बड़ा दिखे तो ट्रू, क्योंकि फॉल्स को लिखने के लिए इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फाल्स को लिखने के लिए ट्रू को तो ट्रू तो लिखा तो लिख जाएंगे। सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस हो गया। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स एक्सपर्ट। ऑप्शंस आर ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग, ये जो सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, फॉलोइंग आर रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स है। प्राइवेसी थ्रेट्स का मतलब प्रॉब्लम है, प्राइवेसी रिलेटेड प्रॉब्लम है। पहला है हैकर्स, स्पैम, वायरस, वर्म। All of the following are examples of real security and privacy threats concept. दोनों चीजें करते हैं। रियल सिक्योरिटी का मतलब आपके कंप्यूटर को डैमेज भी करेंगे, मतलब प्राइवेसी को मोस्टली स्टील कर देते हैं। डैमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेसी को इन्फॉर्म मैंने अभी बताया
कि आपकी इंपॉर्टेंट चीज को चुरा लेंगे। तो हैकर्स हैं, स्पैम है, वायरस है, वर्म है, क्या है? वायरस नहीं है, यहाँ पे है। I'll see the answer. Two hackers will be there. क्योंकि स्पैम क्या होता है? बल्गरस मैसेज आज कॉल्ड स्पैम। आपके मोबाइल में बहुत सारे फालतूगिरी मैसेज आते हैं ना, आप कहीं मतलब बहुत सारे ऐसे आपकी ईमेल आईडी है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, आपने बहुत सारे इनाम जीत लिए, तो वो दीज मैसेज आर कॉल्ड स्पैम, ठीक है, वो उसको बोलते हैं। वायरस एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसको कंप्यूटर को खराब करता है, ओनली खराब करता है, ठीक है, और वर्म एक टाइप ऑफ वायरस है। तो ये तीनों नहीं हो सकते यहाँ पे। ऑल ऑफ दी एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट्स, मतलब आपके प्राइवेट इंपॉर्टेंट नोटिस को चुरा लेते हैं, तो दीज आर कॉल्ड हैकर्स। Unsolicited commercial email is known as spam, virus, malware, spyware. Unsolicited commercial email is known as कॉमर्शियल मैसेज, जिसको बोलता हूँ स्पैम होता है, वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर स्पैम होता है। कमर्शियल की बात आ गई है, ऐसा कुछ जैसे आप बहुत सारे कंपनी होती है ना कि आप मेरा ये प्रोडक्ट देखो, मेरा बेचो या कोई समथिंग करो, तो यू कैन गेट मनी। सो इन दैट केसेस जब हम मैसेज की बात आती है, कॉमर्शियल की बात आती है, तो यू हैव टू सेलेक्ट स्पैम। Dash monitors user activity on internet or transmit that information in the background to someone else. Okay, see. Once again, Dash monitors user activity on internet and transmit that information in the background to someone else. Options are malware, adware, spyware, none of these. Yes, spyware. तो इसका मतलब होगा स्पाईवेयर मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड समवन एल्स। स्पाई का नाम होता है छुपा हुआ।